सबर नगरवासियों से हमारे अरमान भाई यह है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब गयो गाता, जन गण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता। जय है जय है जय है जय 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 है। वंदे मातरम। जय हिंद। हाले हाले मोरी माँ के केस संवारे, हिंद महासागर भी जननी के पाँव पखारे। भैया हाले हाले मोरी माँ के केस संवारे, हिंद महासागर भी जननी के पाँव पखारे। केसरिया हरियर मिलके जहाँ नया रंग बन जाला, जहाँ ईद होली में साथे गले लग के गीत गवाला। रमजान में राम दिवाली अली गुजे आरती साथे अजान। सच होवे सोना के चिड़ैयन हो हमार देशवा महान। सच होवे सोना के चिड़ैयन हो हमार देशवा महान। सच होवे सोना के चिड़ैयन हो हमार देशवा महान। पुण्य भूमि धरती के गजबे बहार हो, देव तो भी आके जहाँ ले ले अवतार हो। जनमिया जन्मभूमि भी जहाँ स्वर्ग से बढ़ के होले, सीमा पर सीना ताने वीर वंदे मातरम बोले। वीर जवान कुर्बान करे हंसते हंसत जान। सच हवे सोना के चिड़ैयन हो हमार देशवा महान। सच हवे सोना के चिड़ैयन हो हमार देशवा महान।
संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। गुरु रत्नाकर सूर्य जी है हम सबके तारणहार। गुरु रत्नाकर सूर्य जी है हम सबके तारणहार। सबकी जीवन नैया को देते हैं वो किनारे। 57 साल उन्होंने है ज्ञान का अमृत बाटा। अब उनके जन्म दिवस पे हम सबका है ये वादा। जो सीखा है उसे अपनाएंगे, खुशियों को पाएंगे। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। रानीवाड़ा के हर घर में खुशियों का समा है छाया। रानीवाड़ा के हर घर में खुशियों का समा है छाया। संजय मुकेश ने भभूत मल जी का सपना सच है बनाया। गुरु है शीतल चंदा से सागर से गहरे ज्ञानी। प्रभु को हमने ना देखा, बस इनकी कही है मानी। ये बोकड़िया परिवार धन्य हुआ गुरुवर से। শিক্ষক দিবস হিসাবেই পালন করি, কিন্তু আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা আমাদের নেত্রী মমতা ব্যানার্জি ক্ষমতায় আসার পর প্রায় ভুলতে বসেছিল যাদের কথা, তাদের আজকেও আপনি অনেককে বলতে পারবেন না, কিন্তু তাদের কি কথা যাতে না ভুলে যায়, তাই আমাদের নেত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী আমরা বিভিন্ন জায়গায় মিউনিসিপ্যালিটি থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে সমস্ত জায়গায় এবং বিভিন্ন জায়গায় দলের তরফ থেকে সাধারণ মানুষ তরফ থেকে আমরা বাংলায় তার জন্মদিন ধুমধাম করে পালন করি। আজকে এখানে জন্মদিন পালন করার জন্য, এই আয়োজন করার জন্য আমি আরমান মণ্ডলকে ধন্যবাদ জানাই। দেখুন, আমি আরমান মণ্ডলকে আমি চিনতাম না, আমি নাম শুনতাম কিন্তু আমি চিনতাম না। কিন্তু একদিন আমাদের মুজিবরদা এবং আমার মাস্টারমশাই, আমাদের যিনি উপপৌর প্রশাসক ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন জলিল সাহেব, একদিন ওর কথা আমাকে বলল, দেখুন ওকে, ও এলাকায় থাকতে চায়
আপনি ওকে এলাকায় থাকার ব্যবস্থা করুন, ও এলাকায় ভালোভাবে থাকবে। দেখুন আজকে যে উদ্যোগটা ওনারা নিয়েছিলেন এবং আমরা যেটা করেছি সেটা যে আমরা ভুল করিনি তার প্রমাণ আজকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। যে শিক্ষক দিবস উপলক্ষে আজকে টিটাগড়ে যে বড় অনুষ্ঠানটা, সেই অনুষ্ঠানটাই করছে আরমান মণ্ডল। তাই আমি ওকে আশীর্বাদ করি, ধন্যবাদ জানাই। কারণ আজকে দেখুন শিক্ষক আর ছাত্রদের দিন, কারণ শিক্ষকরা ছাত্রদের আশীর্বাদ করবে, ছাত্ররা শিক্ষকদের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করবে, কারণ শিক্ষকরা সবসময় প্রণামের যোগ্য। তার কারণ মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তাকে আমরা শিক্ষক বলে জেনে থাকি। তার কারণ দেখুন আমিও পড়াশোনা করেছি, আমাকেও কেউ না কেউ পড়িয়েছে, আমাকে শিখিয়েছে, তাই আজকে আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে দু চার কথা বলতে পারছি। এই যে কথাগুলো বলছি এটা তো আমার শিক্ষক যদি আমাকে না শিক্ষা দিতেন বা আমি না শিখতাম তাহলে কিন্তু আজকে আমরা এই জায়গায় দাঁড়িয়ে মঞ্চে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিতে পারতাম না। এটার সমস্ত কৃতিত্বটাই হচ্ছে যারা আমাকে পড়িয়েছেন, যারা আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন, যারা আমাকে লালন পালন করেছেন, তারাই আজকে আমায় শিখিয়েছেন বলে আমি এই জায়গায় এসেছি। তাই আমি প্রত্যেকটা ছাত্র ছাত্রীদের বলবো একটাই কথা, এবং শিক্ষকদেরও বলবো একটা কথা, যে আমাদের যাদের দ্বারা আমরা ভারতবর্ষকে চেনে পৃথিবীর লোক, সেই সমস্ত মহাপুরুষ, তাদের কথা যেন বাচ্চারা ভুলে না যায়, এটা আপনারা একটু তাদেরকে মনে করিয়ে দেবেন। তার কারণ আমরা যখন ছোটোবেলায় স্কুলে পড়তাম, যখন অনেক দিন রেনি ডে হতো, সেই সময় এই ছাত্রদের ডেকে শিক্ষকরা, মানে ছাত্রও বেরোতে পারছে না, শিক্ষকও বেরোতে পারছে না, ওই সময়টা কি করবে? সেই সময় আমাদেরকে মহাপুরুষদের নামে, তারা কি নামে পরিচিত, তারা কি করেছে, তারা স্বাধীনতা আন্দোলনে তাদের অবদান কি আছে, শিক্ষা জগতে তাদের কি অবদান আছে, এগুলো আমাদের ওনারা শেখাতেন এবং আমরা শিখতাম, আমরা দু চার কথা তাদের সম্বন্ধে বলতে পারতাম। যেমন ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন হয়, একটা দেশ স্বাধীন হলে তখন তার দেশের সংস্কৃতি, দেশের অর্থনীতি, দেশের ভারতবর্ষটা কি বা সেই দেশটা কি, এটা জানানোর জন্য বিভিন্ন লোককে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে পাঠানো হয়। এই রাধাকৃষ্ণ এমন একজন লোক ছিলেন যিনি সারা পৃথিবীকে ভারতবর্ষের সংস্কৃতি, ভারতবর্ষ কি সেটা মানুষকে বুঝিয়েছিলেন। তার পুরস্কার হিসাবে আমাদের তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ওনাকে রাষ্ট্রপতি করে তাকে পুরস্কৃত করেছিলেন এবং যোগ্য মানুষকে উনি রাষ্ট্রপতি করেছেন। মানে সেরা রাষ্ট্রপতি বলতে যদি কেউ বোঝায় তাহলে ডাক্তার রাধাকৃষ্ণন আমাদের একজন কৃতি সন্তান ভারতবর্ষে। তাই তার সম্মানের জন্য আজকে যে অনুষ্ঠান হচ্ছে, এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে এবং আমার মঞ্চেও অনেক টিচার আছে তাদের প্রণাম জানাই। কারণ আমার সহযোগী যাদের নিয়ে আমরা সবসময় থাকি, সেই জলিল সাহেব উনিও একজন শিক্ষক, তাকেও শ্রদ্ধা জানেন। এখানে মুন্নাদা আছেন, উনিও একজন শিক্ষক, ওনাকেও নমস্কার জানাই। এবং আমাদের মুজিবরদা আরমান মণ্ডলকেও পড়িয়েছে, তাই এই মুজিবরদাকেও আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা তাকে জানাই। কারণ শিক্ষকদের বয়সে ছোট হলেও তাকে শ্রদ্ধা জানাতে হয়, কারণ শিক্ষা নিতে হলে তাদের কাছে যেতে হয়। এই কথা বলে আমি আমার ছোট্ট বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। ईद हो, छठ पूजा हो, होली हो, दीपावली हो, हर किसी के त्योहार में अरमान मंडल खास करके अपने मोहल्ले के लोगों को साथ लेकर चलते हैं। किसी गरीब बहन के यहाँ पूजा में साड़ी नहीं तो साड़ी पहुंचाते हैं, किसी बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल की किताब नहीं किताब पहुंचाते हैं। मैं समझता हूँ सबको आप लोगों ने बहस दिया, उत्तरी दिया, लेकिन दिल की दुआएं आप सबकी जोरदार तालियों से अरमान मंडल के लिए हो। और अरमान मीनार गिरे न, ये गिरे न, इनके उम्मीदों के मीनार गिरे, मगर इनके गिराने के चक्कर में इनके गिराने वाले न जाने कितनी बार गिरे। दोस्त जहर का नहीं था जो अरमान ने पी लिया, दोस्त जहर का नहीं था जो अरमान ने पी लिया, दोस्त तो उनका था कि जहर पीने के बाद भी अरमान ने जी लिया। चलिए अब मैं जी कौन मंडल भाई, जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए।
गुलाबी दस्ता देकर स्वागत किया जा रहा है। अब तो तालियां बजाइए बहनों। बहुत एक ऐसा प्यारा बच्चा, एक ऐसा नौजवान, वाकई सबकी कदर, सबकी इज्जत करना। मैं आ रहा था तो रास्ते में मतलब कई सारी महिलाओं को रोककर अरमान भाई पूछ रहे थे कोई तकलीफ नहीं है, खबर कैसा है। यही इंसानियत है, इससे बड़ा और क्या है। अरमान भाई बहुत आगे बढ़े, सबको साथ लेकर चले, दिल से ये दुआ है। और मैं बहुत दिनों तक वो इलाका में नहीं थे, नहीं रहे, लेकिन इनकी आने की ख्वाहिश थी। जब भी चूंकि मैं एडवोकेट हूँ, कोर्ट में मुलाकात होती थी और वहाँ ये बराबर इसरार करते थे कि सर एक बार आप हमको इलाका में रखवाइए। और साथ ही साथ पैगाम हक के सेक्रेटरी जो नईम साहब है वो काफ़ी उन्होंने दबाव डाला हम लोगों पर, और हम लोगों ने देखा कि नहीं, जब अरमान भाई की ये ख्वाहिश है कि हम समाज की काम करेंगे, समाज की खिदमत करेंगे, हमको एक मौका दिलवाइए। और हम लोगों ने प्रशांतोदा से इतना इसरार किया कि जिस तरह के गर्ल्स हाई स्कूल बना था, और सीलभद्रों ने जो एक से मिले थे कहा था कि मुजीबदा और जलीलदा हमार बाड़ी ते नींद हराम कर दिए थे, और उसी बात को दोहराते हुए ब्रतो बसु जो उस वक्त के एजुकेशन मिनिस्टर थे उन्होंने कहा था कि हमारा नींद हराम सीलभद्रों ने कर दिया था। और वो स्कूल को आपको एक जो है ना इनाम मिला, तोहफा मिला, उर्दू मीडियम गर्ल्स हाई स्कूल को। इसलिए मैं खुद शुक्रगुजार हूँ, मैं एहसानमंद हूँ अपने चेयरपर्सन प्रशांतो चौधरी जी का कि उन्होंने हम लोगों की जो कोशिश थी, हम लोगों की जो दुआएं थी वो कारगर साबित हुई, उनके वजह से हुई। इसमें हमारा कोई ये नहीं, हमने अप्रोच किया, जलील साहब ने अप्रोच किया, जलील साहब ने भी काफ़ी कोशिश की, और आपके सामने वो जीता जागता जो अरमान मंडल यहाँ मौजूद हैं, इनके लिए हम लोगों की तमाम दुआएं हैं। जहाँ तक टीचर्स डे का मामला है, हम लोग टीचर्स डे हर साल मनाया करते थे, और मैं एडवोकेट आज आपके सामने नजर आ रहा हूँ, लेकिन प्रीतम सर जी यहाँ मौजूद हैं, वो मुजीब मास्टर के नाम से मैं जाना जाता था। और मैं ये समझता हूँ कि मुजीब सर कहने में जिन्हें मुझे खुशी मिलती है, एडवोकेट मुजीब कहने में वो मुझे खुशी नहीं मिलती है। इसलिए कि मैं 20-25 साल तक उस पेशे से जुड़ा रहा। बदकिस्मती थी कि मुझे एडवोकेट बनना पड़ा, वरना इस स्टेज पर दो यहाँ पर हेडमास्टर स्कूल के मौजूद हैं। हमारे बीच जावेद इकबाल साहब हैं, कासिम साहब हैं जो अंजुमन गरीबुल मुस्लिमीन का, मैं खुद भी प्रेसिडेंट हूँ अभी, और जावेद साहब उसी स्कूल के वो टीचर भी, स्टूडेंट भी थे और आज हेडमास्टर भी हैं। और इत्तेफाक से ये मेरी खुशकिस्मती है, मेरी दुआएं हैं कि दोनों मेरे स्टूडेंट हैं और दोनों दो हाई स्कूल के हेडमास्टर हैं, दोनों ही मेरे स्टूडेंट हैं और दोनों हाई स्कूल के हेडमास्टर हैं। तो टीचर की इज्जत करना आपको सीखना होगा। टीचर की इज्जत से एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि जापान टोक्यो का एक टीचर, दो दोस्त बात कर रहे थे, धूप का वक्त था और दोनों जब चल रहे थे वो टीचर, तो पीछे से कुछ स्टूडेंट वो फुदकते फुदकते कूदते कूदते चल रहे थे। और जब वो शहर में पहुंचे, जब बरामदे में पहुंचे, तो बरामदे में पहुंचने के बाद एक टीचर से पूछने लगा कि पीछे में जो स्टूडेंट थे वो फुदक फुदक कर क्यों चल रहे थे। दूसरे टीचर ने कहा कि देखो सूरज की वहां पर धूप पड़ रहा था और हमारी साया छाया वहां पड़ रहा था, और स्टूडेंट ये नहीं चाहते थे कि उनके हमारे जिस्म की छाया पैरों तले रौदा जाए, इसलिए वो कूद कूद कर चल रहे थे। ये था टीचर का एहतराम। मेरे दोस्तों, टीचर अगर नहीं, चाहे तुम वकील बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, चाहे जितने बड़े मुकाम पर चल जाओ, लेकिन वो टीचर ही तुम्हें बनाता है। अगर टीचर नहीं तो तुम वो काबिल इंसान नहीं बन सकते हो। हम लोगों को भी जो आज ये आपके सामने हम बोल रहे हैं, उसी टीचर का ये देन है। तो टीचर के इस तरह की बहुत सारे मिसालें हैं। जब अबुल कलाम नोबेल इनाम प्राइज पाए थे, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट, तो वो नोबेल इनाम प्राइज अपने टीचर के पैरों तले आकर के रख दिए थे और उन्होंने कहा था कि सर आपने मुझे क्लास में 1 रुपया दिया था और इस नोबेल प्राइज की कीमत उस 1 रुपया से बढ़कर नहीं है, वो 1 रुपया के बराबर भी नहीं है। ये उसके कदमों में रख दिए थे वो नोबेल प्राइज, अबुल कलाम जो साइंटिस्ट थे।
बहुत सारी मिसालें हैं, वक्त की कमी है। मैं आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करते हुए खास तौर से यहाँ आए हुए मेहमान हमारे अकबर भैया, जो हमारे दोस्त के बड़े भाई हैं, अकबर जख्मी साहब, वो भी हिमायतुल गुरबा हायर सेकेंडरी स्कूल के वो प्रेसिडेंट हैं, उनको भी मैं शुक्रिया अदा करते हुए और तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करते हुए मैं अरमान मंडल की ये दुआएं देते हुए कि आने वाले दिन में और तरक्की करे और इलाका को अमन और शांति से रखे, यही कहते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज। शुक्रिया। শিক্ষক দিবস হিসাবে পালন করা হয়। আজকে যেমন শিক্ষক দিবস, অতি অবশ্যই একটা সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিন আছে, এটাকে তাকে শিক্ষক দিবস হিসেবে তাকে সম্মান জানানো হয়। তা আমরাও এখানে শিক্ষক দিবস উপলক্ষে শিক্ষকদের সম্মান জানাচ্ছি এবং আরমান মণ্ডলকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে ওই ব্যবস্থাটা করার জন্য। তারপরে একটা মানুষের মনের মধ্যে এই চেতনাটা থাকা উচিত যে একজন শিক্ষককে সম্পাদনা দেওয়া, এই চেতনাটা সবার মধ্যে থাকে না। শিক্ষকতা গ্রহণ করে তারপর অনেক বড় হয়ে যায়, বড় হয়ে গিয়ে শিক্ষককে ভুলে যায়। কিন্তু কেউ না কেউ তো আমাদের শিখিয়েছে, শিখিয়ে পড়িয়ে আজকে আমরা এই যাই তার শিক্ষাতেই শিক্ষিত হয়ে আজকে আমরা যাটুকু বলতে পারছি বা করতে পারছি। তাই কাজে আজকে দিনে একটাই কথা হচ্ছে শিক্ষকদের এবং যারা বাচ্চারা যারা ছাত্রছাত্রী তাদেরকে বলবো যে তারা পূর্বপুরুষ যাদের জন্যে দেশ আমাদের গর্বিত, যাদের জন্যে ভারতবর্ষকে সবাই চেনে, সেই সব মানুষগুলোকে যেন ভুলে না যায়, সেই দিনগুলো যেন তারা মনে রাখার চেষ্টা করে। যেমন আমাদের নেত্রী আসার আগে এসব দিন কোনোদিন পালিত হতো, কিন্তু এই নেত্রী আসার পর নেত্রী এই দিনগুলো মানেন বলে শিক্ষক দিবস থেকে শুরু করে সমস্ত রকম সবার রবীন্দ্র জয়ন্তী থেকে শুরু করে নজরুল জয়ন্তী থেকে শুরু করে সব কিছু আমরা পালন করি। নেতাজির এটা আমরা খুব বড় করে পালন করি, এটা শুনলে এটাও ছোটো হয়ে গেছে। কাজেই এটা মানুষ যাতে মনে রাখে তাকে, সেই যে প্রয়াস রাজ্য সরকার নিয়েছে এবং মাননীয় নেত্রী নিয়েছে, এটা মনে রেখে শিক্ষকদের অনুরোধ করি, ছাত্রদেরও মাথার মধ্যে দেওয়া উচিত যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চেয়েছিলেন একটা অনেকে জিজ্ঞেস বলতে পারে একটা সর্বোপরি রাধাকৃষ্ণ কে ছিলেন, উনি কী করতেন, এটা তো জানা দরকার। সেই সময় সারা পৃথিবীতে যতজন ব্যাপার ছিল তার মধ্যে একজন উনি জানা দরকার, না জানলে এই কুড়িজন মুখিয়ারা জানবে কী করে। স্কুলে যেতে পারে না বলে সাইকেল দিয়ে, তারপরে হায়ার এডুকেশনে গেলে সে টাকা পাচ্ছে, আমার এমনি পড়াশোনা তো ফ্রি। এই যে মায়ের মাতৃত্বের যে এটা অনেক হবে যে উনি মেয়ে বলে উনি মহিলাদের দেখেন, ওখানটা তো এই স্কুলের ছাত্রছাত্রী সবাই তো আর মহিলা না, মাতৃত্বে মার যেটা করা দরকার সেটা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী করছে। अच्छा, আমরা গর্বিত। इस शख्स से मैं इतना मुतासिर हुआ, उनके ख्वाहिशों के, उनके जज्बात को पूरा करने के लिए जो इनके अंदर जज्बा है, उस जज्बे की मैं बहुत ही कदर करता हूँ। बहुत मुतासिर किया इस शख्सियत ने मुझे। ये दूसरा मरतबा इनका प्रोग्राम में मेरा आना हुआ। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिन में ये अरमान भाई, हमारा छोटा भाई, इस टीटागढ़ पे एक रोशन सितारा बनकर आसमान की बुलंदी को छुए, जिस पर इल्जाम ना हो। जो आदमी कौम की खिदमत और रहनुमाई करेगा उसको किसी न किसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ये प्रोग्राम क्या है? ये टीचर्स डे का प्रोग्राम है। तालीम के बारे में, इल्म के बारे में, शिक्षा और उस्ताद के बारे में। यहाँ तो तज़किरा होना चाहिए उस्ताद का बारे में, तालीम और इल्म के बारे में, ना कि किसी के जातियात पर कीचड़ उछालने के लिए आपको बुलाया गया था। आप आए हैं तो आप अपनी तकरीर में इसकी कारनामे की तारीफ कीजिए, इनके कोशिशों को सराहिए, ना कि इनके माजी को कुर्रे दिएगा। ये कैसी सियासत है? एक शेर मुझे याद आ रहा था, एक एक कतरा तोल के देगा और एक एक पैसा मोल कर लेगा,
अब साकी गजलों का नहीं, अब साकी व्यापारी है और तितली के पर नोचे हैं, फूलों की खुशबू लूटी है। ये रहबर का काम नहीं, ये रहबर की बक्कारी है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और भाइयों, मैं चूंकि आज ये और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म जितना था, आने वाली दुनिया में क़यामत तक उनके इल्म के बराबरी क्या, उनके इल्म के किनारे तक भी दुनिया के उलूम नहीं पहुंच सकेगा। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग भाइयों, आज उस्ताद में आते थे तो उनकी दिली तमन्ना होती थी कि हम अपने बच्चों को कुछ दें, कुछ सिखाएं। लेकिन आज मैं देखता हूं और महसूस करता हूं कि अब टीचर जो है स्कूल को स्कूल नहीं बल्कि स्कूल को ऑफिस समझता है, दफ्तर। घंटी बजी, बैग रखा और क्लास में गया, फिर घंटी जो बज गई बैग उठाया चल दिया। हम लोग जो पढ़ते थे स्कूल में तो हमारे इलाके के जो टीचर थे, सर्विस कमीशन हो गया। और सर्विस कमीशन होने से क्या हुआ कि अब हिंदी स्कूल में उर्दू टीचर, उर्दू स्कूल में बांग्ला टीचर, बांग्ला स्कूल में उर्दू टीचर, माने तालीम का कचरा करके रख दिया। ये सीपीएम की हुकूमत में ये स्कूल सर्विस कमीशन को लाया गया, जिससे पढ़ाई का जो है स्टैंडर्ड में आज काफ़ी गिरा और बच्चों के अंदर जो पढ़ने का रुझान था उसमें भी कमी आ गई। खासकर देखिए कि उर्दू और हिंदी स्कूल के बच्चों का जो मेयार है, स्टैंडर्ड है पढ़ने का, वो क्या पढ़ता है नहीं पढ़ता है, उसके घर का जो गार्जियन है उनको पता ही नहीं रहता कि वो क्या पढ़ रहा है। लेकिन वही गार्जियन अगर अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन करा देता है तो उसको लेकर टाइम से ले जाएगा छोड़ने, टाइम से पहुंचाने, उसका जो है होमवर्क चेक करेगा, देखेगा। अगर यही सिस्टम अगर आप हिंदी और उर्दू बच्चों के साथ भी गार्जियन करे तो ये हमारे बच्चे जो है, तो हमारे ऑफिस से फ़ोन गया हमारे पास कि सर जरा आइए। तो मैं गया तो पूछा क्या बात हुआ, क्या बात हुई है। तो उन्होंने कहा कि ये लड़का अपने बाप का नाम नहीं लिख सकता और कहता है कि हमको सेंड अप कर दीजिए, और उसके गार्जियन भी उसके हाँ में हाँ मिला रहे थे। कलर बेचारा परेशान। मैंने कहा कि जो लड़का अपने बाप का नाम नहीं लिख पाएगा वो माध्यमिक में सवाल और जवाब कैसे हल करेगा। तो उसकी माँ बोल रही कि 3 महीना टाइम है ना, हम करवा देंगे। तो मैंने कहा तो वो घोल के उसमें सब पिला दीजिएगा। बोले नहीं होगा। बोले अगर मत करना, जाइए निकालिए। मैंने आउट कर दिया। और ये सिर्फ एक बच्चे का नहीं है, मैं अभी देख रहा हूँ कि 11-12 क्लास में पढ़ने वाले बच्चे भी ऐसे हैं, अगर उनको 2 लाइन बोले कि एप्लीकेशन लिख के दे दो तो वह नहीं लिख पा रहा है। ऐसे बच्चों की तादाद 60 से 70% है। 30% जो बच्चे हैं वही पढ़ पा रहे हैं, और बच्चियां जो हैं, बच्चियों का जो है स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन जो है वो बहुत अच्छा है। तो मैं चाहूँगा कि जिस तरह से करवाइए कि आपका बच्चा स्कूल में गया है तो टास्क जो किया है, क्या पढ़ा है नहीं पढ़ा है, कम से कम 1 घंटा देख लीजिए तो उसका भविष्य उधर संवर जाएगा। आपको बहुत मसरूफ़ हैं आप। 6 महीना में 1 दिन जाकर स्कूल में उसके क्लास टीचर से मिलिए और पूछिए मेरा लड़का किस तरह पढ़ रहा है। इतना अगर आप करेंगे तो आपका लड़का आपका नाम रोशन करेगा, और अगर आप इतना नहीं कर पाए तो वही लड़का आपके नाम पर दाग लगा देगा। ये बात आप जहन में रखिए कि बच्चा जो है मासूम है, जिधर मोड़िएगा उधर मुड़ जाएगा। आप उसको प्यार से या डांट कर मार कर अगर उसको तालीम देना चाहेंगे तो वह सीखेगा, तो फॉलो कर लेगा। और उसका अगर लैंग्वेज सही नहीं रहा
तो वो लड़का फिर कभी भी जो है वो एजुकेशन का जो मयार है उस स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन में कभी नहीं आएगा। भले वो चीट करके पैसा दे के माध्यमिक पास कर ले, लेकिन कभी भी कोई कंपेटिटिव एग्जामिनेशन पास नहीं कर सकेगा। लिहाजा मैं टीचरों से और बच्चों के गार्जियनों से आज इस शुभ टीचर्स डे के शुभ अवसर पे, मुबारक मौके पे और इस प्रोग्राम के जरिया अरमान मंडल के तवस्सुत से तमाम हजरात से जो मौजूद हैं, बड़े भाई और हमारी माताएं और बहनें और हमारे उस टीचर महत्व और टीचर हजरात से हमारी दरख्वास्त है कि कम से कम आप बच्चों के लिए इतनी तालीम जरूर दें कि उसको हराम और हलाल की तमीज़ आ जाए, वो पढ़ने और समझने के लायक बन जाए। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो आप एक बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद होने का मतलब है कि एक आने वाले नस्ल का मुस्तकबिल तबाह और बर्बाद हो जाएगा। लिहाजा मैं आप तमाम हजरात से यह दरख्वास्त और इल्तिजा और विनती करते हुए, खासकर मैं अरमान भाई से भी मैं दरख्वास्त करूँगा कि अपने इलाके में अपने क्लब इंस्टीट्यूशन में ऐसे कोचिंग का भी इंतज़ाम कीजिए जहाँ पर बच्चों को बेसिक जो उनका फाउंडेशन, जो बुनियादी तालीम है, उसको मजबूत किया जाए। उसको अगर मजबूत कर देंगे तो वो बच्चा जो है आगे जाकर अगर वो तैरना तालाब में सीख लेगा तो वो कल समंदर में भी तैर सकता है। लेकिन अगर जो कुछ जानते ही नहीं तो फिर वो एक छोटे से गड्ढे में भी वो डूबकर नाकाम हो जाएगा। लिहाजा मैं तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करते हुए और भाई रियाज और अरमान मंडल साहब को से का मैं शुक्रिया। स्वामी विवेकानंद बने, राधा कृष्ण मोहन बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, बहने हमारे इंदिरा गांधी बने, तो ये बनने का रास्ता सिर्फ तालीम और शिक्षा है। अगर इसको हम लेकर चलेंगे तो हम दुनिया के किसी भी कंपटीशन में कामयाब होंगे। और अगर हमारे पास शिक्षा और तालीम नहीं तो हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। और जब हम कामयाब नहीं होंगे, हमारे नस्लें जब बिगड़ जाएंगे तो हमारा कल आने वाला दिन जो होगा हमारे लिए भी और हमारे मुल्क के लिए भी सही नहीं होगा। लिहाजा मैं आप हजरात से दरख्वास्त करूंगा कि अपने आप को बचाने के लिए, अपनी समाज को बचाने के लिए, अपने बच्चों की मुस्तकबिल और भविष्य को संवारने के लिए आप तालीम और शिक्षा का सही तरीके से हासिल करने का इंतज़ाम कीजिए, कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए और जहां ज़रूरत पड़े अरमान मंडल को साथ बुलाइए। ये आपके कदम से कदम मिलाकर चलेगा, आपके ज़रूरत पर खड़ा रहेगा। जब भी आवाज़ दीजिएगा ये आपके लिए लब्बैक कहेगा। इसी नेक ख्वाहिशात के साथ आप तमाम हजरात का शुक्रिया करते हुए मैं अपनी बातों को ख़त्म कर रहा हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो, मैं अपने दिल से अकबर जख्मी साहब को शुक्रिया अदा करता हूं जो कांके अंचल के बागबान में तशरीफ लाए हैं। आप लोगों के लिए जोरदार ताली। नाम अगर अरमान हुआ तो ये ऊपर मशक्कत से लेटर दे करके और मास्टरों को एक जगह किए हैं। इसके आगे हम लोगों ने भी पढ़ा था मगर ऐसा नहीं होता था। ये आज एक बांस बगान का रौनक बनाए हैं और अल्लाह इनकी हयात, इनकी तंदुरुस्ती दे और इसी तरह बच्चे पढ़े। इस पर मैं एक शेर बोल देता हूँ, वक्त पड़ गई जरूरत अब, वक्त पड़ गई जरूरत अब, बिन पढ़े कोई चारा नहीं और कोई हुकूमत हमारा नहीं। पढ़ाई रहेगा, लड़ाई करिएगा, हर मकसद को पूरा कर लीजिएगा। मैं आज अरमान मंडल को भतीजा है मेरा मगर शेर दिल रहे
आज ये बुलंद बांस बगान का रौनक है। जिस दिन ये नहीं रहते हैं यहाँ की रौनक खत्म हो जाती है। मैं सोच रहा था हकीम साहब के बारे में बोलूं कि दुकान खुली है, रात हो गई, ताला कब लगाएंगे। अरमान तो बगल में ही खड़ा है, माला कब पहनाएंगे। लेकिन चलिए कम से कम हकीम साहब ने माला पहना दिया, शुक्रिया। अब मैं एक एक करके तमाम लोगों को बुलाऊंगा। तमाम टीचर्स हजरात जो हैं बड़ी दूर दूर से आए। आज इस महफिल का रौनक सभी ने उनको अभी तक किसी ने माला नहीं किया। मैं एलाउंसर भाई को ये माला दे रहा हूँ। इस पर एसातिज़ा देख रहे हैं। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए बस इतना समझें कि इससे पहले जो लोग तकरीर कर रहे थे उनका है कौन बुरा है, बस इतना इकट्ठा कर लेते हैं। लिहाजा ये टीचर्स डे का जो प्रोग्राम है मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं है। यहाँ सियासत नहीं बल्कि मोहब्बत की बात होनी चाहिए। यहाँ सियासत नहीं बल्कि इल्म की बात होनी चाहिए। यहाँ सियासत नहीं बल्कि भाईचारे की बात होनी चाहिए। यहाँ सियासत नहीं बल्कि एजुकेशन की बात होनी चाहिए। सियासत को अलग प्लेटफॉर्म पर रखा जाए, यहाँ सिर्फ मोहब्बत की बात की जाए, इसलिए कि मोहब्बत करेंगे तो इंसान से इंसान में मोहब्बत पैदा होगा। होते हम कामयाब है, एजुकेशन से प्यार है, एजुकेशन से प्यार है। चलिए वक्त ना गवाएं, वक्त बर्बाद ना करें, आप पास में खड़े रहेंगे। जी श्री किशोर चौधरी जी, वार्ड नंबर 17 GS। श्री किशोर चौधरी जी, पूज्य गुरुजन, अब मैं आप सभी का सम्मान शुरू से, अभी नहीं बल्कि शुरू से ही आपका ही ये प्रोग्राम है, टीचर्स डे, शिक्षक दिवस, ये आपके लिए है। मैं अब स्वागत के लिए और उपस्थित है, मैं चाहूंगा श्री किशोर चौधरी जी के लिए जोरदार तालियों का अभिनंदन हो। शिक्षक हैं, बच्चों को तालीम देते हैं, शिक्षा देते हैं। चलिए वेस्ट बंगाल के चेयरमैन, आप अपने हाथ से बैरकपुर लोकसभा के, चलिए आप अपने हाथ से और अब मैं नेक्स्ट आवाज देने जा रहा हूं मोहम्मद सरफुजा साहब को। ये हेड टीचर है खड़दा मक्तब प्राइमरी स्कूल के। इसके बाद मैं आवाज देने जा रहा हूं श्री राजकुमार दास जी, टीचर इंचार्ज सरस्वती विद्यालय। तालियां तो बजाइए बहनों, आप पर ही आपको ना जाए, मकान कसम से कह रहा हूं, मजाक नहीं। श्री नंदलाल शर्मा जी हैं, टीचर इंचार्ज गौरी शंकर प्राइमरी। उतरे देकर उनका सम्मान कर रहे हैं। एक एक करके मोमेंटो आप बढ़ाते रहे सर। श्री नंदलाल शर्मा जी नेक्स्ट तैयार रहेंगे, टीचर इंचार्ज गौरी शंकर प्राइमरी स्कूल कोलकाता 6। तालियां जोरदार हो। श्री दिवाकर साहू जी, टीचर इंचार्ज स्टैंडर्ड जूट मिल वेलफेयर, उत्तरी देंगे। और जो सीनियर हैं दिवाकर साहू जी आ गए सर, आइए सर। मैं जनाब जावेद इकबाल साहब से दरख्वास्त करता हूं कि मोमेंटो वो दे दें अपने हाथ से, हेड टीचर हमारे, आइए जी, आइए नेक्स्ट हिमाचल गुरुआ हाई स्कूल से जनाब नई मक्ष उतरी, और मैं जावेद सर से कहूंगा कि वो मोमेंटो दें। और आप तमाम लोगों से कहूंगा कि आप कुछ ना देकर तालियां ही दें, मजा आएगा, अच्छा लग रहा है, माहौल बन रहा है। जी शाहिद अख्तर साहब, रिश्रा अंजुमन हाई स्कूल। शाहिद साहब, शाहिद
इस्लामिया हाई स्कूल कोलकाता से महमूद आलम साहब। नेक्स्ट शमीम अख्तर साहब तैयार रहेंगे। शमीम अख्तर खान साहब बैरीपुर अंजुमन हाई। लेकर आए हैं घर से तालियां बटोर के, वापस ले जाएंगे क्या? बजाइए ना जी। निशार साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ मेमेंटो आप दे दीजिए। आइए लोगों को आप दीजिए। निशार मैं बोलने दूंगा सर जी, मैं बोलने दूंगा, सर को भी बोलने दूंगा। यही तो जगह है, आप लोग बजाइए, न शर्माइए, थोड़ा तो मुस्कुराइए। आज आपका दिन है साहब, और आपके दिन को मैं सैल्यूट करता हूं। मैं भी बेवकूफ हूं, सिर्फ आज का दिन आपका क्यों है? हर दिन आपका है, क्योंकि आप समाज का निर्माण करते हैं, बच्चों के भविष्य का निर्माण करते हैं। अच्छा, सहाना परवीन, दोनों के लिए तालियां हो, प्यारी बेटियों के लिए, प्यारी बहनों के लिए। राखी में हम लोग आते ना, बहना ने भाई की कलाई पे, यहाँ वो उल्टा हो गया, बहना ने बहना की कलाई पे। थैंक यू बेटा, दोनों कामयाब हो, दोनों आगे बढ़े, और दोनों बेटियां फूल की तरह मुस्कुराती रहे। अरमान भाई पैकेट दोनों एक स्कूल का। अरमान सर को मैंने आवाज दिया था साहब, मोहम्मद अरमान साहब। ओ आप हैं? अरे चलिए, हाँ सही बात है। और को दुआ देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, और सहाना परवीन के लिए मैं आफरीन बोरा, आप मंच पर आ जाएं। सहाना परवीन पास में खड़ी है, बेटा आ जाओ सामने जी। अरे अब तो दोनों बेटियों के लिए बजाइए ना। इनके लिए मैं इसलिए ज्यादा तालियां बजाता हूं ना, क्योंकि ये पल भर में हमको खुशी देती हैं, और पल भर में जब बाबुल का अंगना छोड़कर कहीं पराये घर में जाती है ना, तो रुला भी देती है। तो ऐसे बेटियों पर कुर्बान करता हूं कि अब कुछ बोले हमारे हेड टीचर साहब कासिम साहब। स्टेज पे बैठे हुए एक जगह मौका मिले और हम सब अपने ख्यालात का इजहार कर सके। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। सड़कों पे भागे फिरना कभी अपना खेल था, सड़कों पे भागे फिरना कभी अपना खेल था, अब मालगाड़ी हूँ कभी पंजाब मेल था। लेकिन ये प्रोग्राम जो है अरमान साहब का है, अगर उनके बारे में कुछ ना कहें तो बड़ी नाइंसाफी होगी। हजारों दिलों की धड़कन, हजारों दिलों की धड़कन और अरमान है मंडल, हजारों दिलों की धड़कन और अरमान है मंडल, बांस बगान के लोगों की शान है मंडल। देव पैकर पेड़ सब, देव पैकर पेड़ सब जड़ से उखड़ गए, देव पैकर पेड़ सब जड़ से उखड़ गए, आंधी न समझो तुम इसे तूफान है मंडल, आंधी न समझो तुम इसे तूफान है मंडल। जो खामोश थे बरसों से वो बोलने लगे, जो खामोश थे बरसों से वो बोलने लगे, पिछड़ी हुई समाज की नई जुबान है मंडल, पिछड़ी हुई समाज की नई जुबान है मंडल। छोटा बड़ा न कोई सब है एक समान, छोटा बड़ा न कोई सब है एक समान, जो तौले सबको यकसा वो मीजान है मंडल, वो मीजान है मंडल। मंडल के कमंडल में गोताजन है, में गोताजन है सारा शहर, सुन लिया है जब से त्रिमूल का निशान है मंडल। क्योंकि आज इनका 5 दिसंबर का है। एक हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब निसार अहमद साहब, हमारे कलीग्स जो सामने बैठे हैं एहसास जकरम, उन सबका मतलब जाहिर हो कि वो
आने दुनिया का सबसे पहला जो कामयाब आदमी है बिल गेट्स, वो ड्रॉप आउट स्टूडेंट रहा है। आपको पता है वो ड्रॉप आउट स्टूडेंट रहे हैं। दुनिया में बहुत सारी ऐसी मिसालें मिल जाएंगी जिनके कैरियर में बहुत सारे नस्ल फराज आए हैं, बट आज की जिंदगी में वो एक कामयाब इंसान की हैसियत से सामने हैं और हमें उनकी हिम्मत अफजाई करनी चाहिए। वो हमारे समाज के एक हिस्सा हैं और हम सब टीचर जो है ऐसे लोगों को शुक्रगुजार हैं जिन्होंने वो हमें इस मौके पे हमें उन्होंने बुलाया। उनकी पूरी टीम मुबारक के मुस्तहक है। मैं बताना चाहूँगा आपको कि जहाँ तक असातिज़ा ये टीचर्स डे का मौका है, तो मैं टीचर्स डे सिर्फ टीचर मैं अपने आप को खुद नहीं मानता हूँ। जो स्कूल में सिर्फ पढ़ाते हैं वही सिर्फ टीचर नहीं है, बल्कि टीचिंग जो है एक जॉब नहीं है, प्रोफेशन नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी। टीचिंग को मैं प्रोफेशन नहीं समझता, मैं इसे कोई पेशा नहीं समझता, बल्कि ये एक जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी की शुरुआत उसी दिन से शुरू हो जाती है जिस दिन बच्चे की पैदाइश होती है। आपको पता है कि स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर हैं, उनके हाथ में जब बच्चा आता है उस वक्त क्लास 1 में जब बच्चे आते हैं उनकी उम्र जो है 6+ होती है। बस उससे पहले, लेकिन उससे पहले जो है बच्चा पढ़ता है तो कहां? घरों में, माँ के गोद में। तो माँ का गोद जो है बच्चों का पहला स्कूल है, वहीं से वो पहली बार सीखता है। तो इसीलिए जो है माँ को जो है 1000 टीचर पे सेंटर में काम करते हैं, उनके लिए टीचर है। एक जो लोहार है उनका जो जूनियर है वो उनके लिए टीचर है। तो टीचर सब है, लेकिन टीचर की जिम्मेदारी जो है वो हमारे लिए जो अखलाक सिखाते हैं, जो मोरल सिखाते हैं, जो समाजी एक रहनुमा के तौर पे काम करता है, वो टीचर जो है उनकी जिम्मेदारी 24 घंटे की है। 24 घंटे एक टीचर है। याद रखिए कि जब ये जिम्मेदारी है तो हमारी ड्यूटी 24 घंटे हो। हाँ, हम टीचर का अखलाक नहीं अच्छा होगा तो वो बच्चा अच्छा नहीं सीखेगा। आप समाज में रहते हैं, रास्ते में चलते हैं, आपके पोशाक से लेके, आपकी जबान से लेके, आपके अखलाक से लेके, आपके किरदार को हर बच्चा आपकी इमिटेट करता है, नकल करता है। इसलिए हमारे टीचर हजरात की जिम्मेदारी है कि हम लोग जो हैं इस पे अमल करें। आपको पता है कि हमारे समाज में हमारे अल्लाह पाक ने कुरान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मुअल्लिम की हैसियत से पेश किया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बयान करते हैं कि मुझे मुअल्लिम बना के भेजा गया है। अल्लाह पाक ने मुअल्लिम को रहती दुनिया तक उनकी इज्जत व आखिरत को इन बुलंदियों पर रख दिया है कि दुनिया उन्हें सलाम करती है। हम टीचर भी उनके बराबर होनी चाहिए। हम उसी तरह हम अपने आप को ढालना चाहिए ताकि हम समाज को एक अच्छा तालीम दे पाए। ज्यादा वक्त नहीं है, बहुत कुछ बोलने का था, लेकिन मैं अपनी बात यही खत्म करता हूँ। शुक्रिया। शुक्रिया सर, बहुत बहुत। मजलिस, अस्सलाम वालेकुम। सबसे अहम बात यह है कि गुज़िश्ता 2 सालों से जनाब अरमान साहब हम तमाम टीचर हजरात की ये हौसला अफजाई कर रहे हैं, हमारी इज्जत अफजाई कर रहे हैं। इनके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। समाज हमारी तरफ ये इज्जत अफजाई करके हमारी जिम्मेदारियों को याद दिलाया जा रहा है यहाँ पे। इसीलिए ये हमारे लिए बहुत ही सोचने का लम्हा है। हमारे बहुत सारे हजरात ने बहुत सारी बातें कही, काफ़ी वक्त हो चुका है, बहुत ज़्यादा कहने का नहीं है, लेकिन मैं यही कहूँगा थोड़ी सी बात कि इल्म हासिल करने के लिए बहुत सारे मसाइल सामने आएंगे और हमारे समाज में, हमारे स्कूल के इर्द गिर्द में बहुत सारी ऐसे मिसालें हैं कि बच्चों ने तमाम परेशानियों के बावजूद इल्म हासिल किया और कामयाबी हासिल किया। हमें इल्म हासिल करने के बाद अपनी समाज को, अपने घर को चेंज करने का एक ज़रिया बनाना है और मैं उसमें कहूँगा कि हमारी माएँ बहनें बहुत ही उसमें अहम रोल अदा कर सकती हैं। आपने सुना होगा जो हमारे बल्ब के मौजूद हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा, एडिसन है, बहुत ज़्यादा लंबा में, तो अपने बच्चों को सही तरीके से कामयाब कर सकती हैं। एडिसन के बारे में ये है ना अहल है और नहीं कामयाब हो सकता है, लेकिन उनकी माँ ने चैलेंज लिया और अपने बच्चे को खुद घर में तालीम दिया
और बाद में जाकर के वह बल्ब का मौजूद ही नहीं, बहुत सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका मौजूद हुआ और कामयाब हुआ। इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि हमारे माएँ जो हैं वह अगर चाहें, वह हमारे साथ वो अगर तालमेल रखें, अगर एक मुसल्लस बनाया जाए टीचरों का, वालिदैन का और बच्चों का, तो इंशाल्लाह जो थोड़ी सी कमियां हैं वह भी पूरी हो जाएंगी और बच्चे कामयाब हो गए इंशाल्लाह। और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा दूर नहीं देखना है। मैं भी एक जूट मिल के मजदूर का बेटा हूँ और हमारे स्कूल में बहुत सारे जूट मिल के मजदूर के बच्चे, खास तौर से मैं कहूँगा कि 7 बच्चे ऐसे हैं जो WBCS ग्रुप ए ऑफिसर्स हैं। अब सब जूट मिल के बच्चे हैं जो लाइन में रहते थे, बहुत तकलीफ ज़्यादा ज़िंदगी गुजारे हैं। तो इन सब चीज़ों को नहीं सोचना है। और साथ ही साथ आजकल बहुत सारी आसानियाँ भी हैं, बहुत सारी स्कॉलरशिप्स है। अब तो गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड भी बना दिया है जिससे वो आला तालीम हासिल कर सकते हैं। इसीलिए पढ़िए, पढ़ने के बगैर और कोई गुजारा नहीं है। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा, फिर से एक बार अरमान साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि हर साल हमारी हौसला अफजाई, हमारी इज्जत अफजाई कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। लोगों को शुक्रिया अदा करता हूं और जो भी मेरे भाई हैं जो यहाँ पर मेहनत की है, मैं उनके भी शुक्रिया अदा करता हूं। और सबसे पहले जो भी मास्टर, जो भी टीचर, चाहे जो भी यहाँ पर आए, अपने कीमती समय यहाँ पर दें, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं उनको अपने दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जी, गैरुलिया नौपाड़ा से आते हैं, तारीख बैरकपुर नौपाड़ा। अच्छा, इसके बाद मोहम्मद असलम साहब, IM हाई मदरसा हुगली। आधुनिक विद्या निकेतन गिरीश पार्क। अंजुमन हैदरी प्राइमरी स्कूल। बहनों, थोड़ा फिर तालियां बजाइए, कुछ और बाकी है। जिस तरीके से खुशी के माहौल में ये पुरस्कार सम्मान समारोह चल रहा है, वैसा ही चलता रहे। अरमान भाई का भी यही दिल अरमान है, तो उनके अरमान को हम लोग पूरी करें। मतीन अंसारी साहब, जफर उर्दू प्राइमरी स्कूल, काकीनारा। जनाब सफी अहमद साहब, इसके बाद एंग्लो बर्ना कुलर हाई स्कूल। सफी अहमद साहब, एंग्लो बर्ना से। ठीक, इसके बाद असरार अहमद आफ्ताब साहब, स्टैंडर्ड जूट मिल वेलफेयर प्राइमरी स्कूल। असरार अहमद साहब आ जाए। इसके बाद मदरसा इस्लामिया प्राइमरी स्कूल नूरे आलम साहब, नूरे आलम साहब। ये दे जी, जनाब नूरे आलम साहब। लोगों को देख देख कर बुला कर क्या बात, यही होना चाहिए। अपने से बड़ों को कदर इज्जत होनी चाहिए। और जनाब अकबर जख्मी साहब मोमेंटो देंगे। इसके बाद सुनील चौधरी जी, श्री सुनील चौधरी जी, जनता हिंदी विद्यालय से। अकबर घुड़ जाओ अकबर। और टीचर हजरत हाँ भाई, हाँ भाई। मोहम्मद शाहिद अंसारी साहब, AGM हाई स्कूल टीटागढ़। मोहम्मद शाहिद टीटागढ़।
सीटी खोल के मारो ना तुम, फिर खोल तो रहे। जी देवाशीष नायक जी को गैस दी जा रही है, उत्तरी दी जा रही है अरमान मंडल साहब की तरफ से। अच्छा, मोहसिन अफरोज साहब आजानुल उलूम हाई मदरसा शिंदरान जी का हो गया है। एस के जफर साहब शुभू जी का नाम है लेकिन वो नहीं आई है, लेकिन नूर आलम असलम साहब, अंजुमन मैनुद्दीन साहब कृपया स्टेज पे आए। माइनॉरिटी सेल के प्रेसिडेंट, टीटागढ़ माइनॉरिटी सेल के प्रेसिडेंट। ईश्वरलाल बहलिया जी, श्री ईश्वरलाल बहलिया जी फ्री इंडिया प्राइमरी स्कूल से। जी माइनॉरिटी सेल के प्रेसिडेंट टीटागढ़ के हमारे डॉक्टर साहब को, हम सबके दिलों में बसने वाले अनमोल हीरा, अनमोल रत्न, सबका प्यारा, सबका दुलारा अरमान मंडल जी बैच उत्तरी देकर उनका स्वागत किए हैं। प्राइमरी स्कूल। इसके बाद चापदानी राम दुलारी हाई स्कूल से श्री विनोद शर्मा जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अरमान भाई के बारे में बोलेंगे। अल्लाह अरमान की अरमान को पूरा करता रहे, दुश्मन जलते रहे और मुंह के बल गिरते रहे। बहुत 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 जी जी, विनोद शर्मा जी का मैंने नाम लिया है, चापदानी राम दुलारी हाई स्कूल से, शायद है वो, है सर जी। और मोहम्मद तालियां थोड़ा जोरदार हो। विनोद शर्मा जी, मोहम्मद फरमान आलम साहब, श्री संतोष चौधरी जी, आप। अचानक इतनी उदासी क्यों है? एक तो वाकया याद आ गया। एक दिन मेरे मोहल्ले में एक धर्मपत्नी अपने पति को, हस्बैंड को बोलती है, सुनिए। हस्बैंड बोला क्या? बोला शादी के ना 7-8 साल हो गए। तो बोला क्या करे? बोले करे क्या, आज तक तलाक हमको सोना चांदी हीरा मोती नहीं दिए। बोला नहीं। श्री मंटू साहू जी आ जाए, शिशु शिक्षा निकेतन, श्री मंटू साहू जी। श्री कृष्णा यादव जी शायद नहीं है। मोहम्मद तारिक साहब, विलियम इस्लाम। नीलम सिंह, लिटिल एंजल प्राइमरी स्कूल। नीलम सिंह, नीलम है, आइए। इसी स्कूल से और भी कुछ टीचर्स हैं। सीमा दास, निशा सोनकर जी हैं, शिक्षिका निशा सोनकर जी नहीं है। नगमा परवीन जी हैं, आइए। एजीएम प्राइमरी स्कूल से नगमा परवीन, वो भी आ चुकी हैं, स्टेज के करीब आ रही है, आए। जनाब खुर्शीद आलम अंसारी साहब, चापदानी राम दुलारी हाई स्कूल से।
स्टेज के करीब आकर आप खड़े रहें। आलम बाजार उर्दू प्राइमरी स्कूल से जनाब नूर आलम साहब, उसके बाद प्राइमरी स्कूल कोलकाता। प्यारी बहनों के लिए भी तालियों की सौगात हो जोरदार। शिक्षिकाएं हैं सारी शिक्षिकाएं बहन जी, भाई अरमान मंडल जी सारी बहनों को, सारी शिक्षिकाएं बहनों को सम्मान करते हुए। अच्छा, आप में से कुछ बोलेगी? कौन बोलेगी? Respected Mr. Arman Mandalji and respected that all the teachers and my dear friends. Lastly, I wish you to all of you the happy Teachers Day. Today we celebrate Teachers Day every year on the 5th September. We celebrate Teachers Day every year on the occasion of the Dr. Sri Sarvapalli Radhakrishnan, his birth anniversary. Today we celebrate Teachers Day. You know the teachers' importance that teachers make our futures bright. We celebrate for them. This is, I want to say that the teacher make us and they help us to become. We respect our teacher every day, every time, because they make our life, our future bright. Okay. अरे हाँ, आइए जनाब मौसाद आलम साहब, जनाब अब्दुल करीम साहब, आपका भी हक बनता है साहब। आइए, उत्तरी तो मिल चुका है, मेमेंटो आप लोगों को दे दिया जाए। समारोह यही खत्म हो रहा है, लेकिन अभी भी मजेदार जबरदस्त डांस। हम लोगों ने बहुत प्रोग्राम देखा है, बहुत ही प्रोग्राम देखा है, बहुत वो लोग करते हैं, लेकिन जो आज का ये प्रोग्राम टीचर डे, अरमान, अस्सलाम वालेकुम। तालियां बहनें, सारी बहनें मिलकर, सारे मोहल्ले वाले मिलकर, बहुत बहुत शुक्रिया अरमान मंडल भाई। हाँ हाँ, सब बैठे हैं सुकूर अली को देखने के लिए। कहा कोई घर ना जी का चाय बांटे, चाय के संगे बिस्कुटों बांटे। आइए, पूरी टीम की तरफ से अरमान भाई आपको दी जा रही है। और अरमान भाई पूरी टीम आपके लिए कह भी रही है, पता कोई पूछे तो कहते हैं हम कि एक दूसरे के दिल में रहते हैं हम, रहते हैं हम, नहीं और कोई ठिकाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना। चलिए, इसी के साथ मैं का बचा के आते हैं। इनकी आंखें देखिए।